وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے بڑے کناں دے مذہب میں کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہے۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آئے ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے پڑھاتے ہوں، کتاب کی حاجت ہی نہیں، پوری کتابیں یاد ہیں، ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت و عامل، عقائد نسوی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے۔ کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت، شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا اور کون ولی بن گیا؟ جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص، یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ دیکھ لو کہ علماء کو پردانے آ، میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں، لیکن انہوں نے پوچھنا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو، تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا چھڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ہاتھ جوڑ چھڑے، انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلیے۔ میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتے ہی نہیں۔ مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائیڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی ابتدا میں کوئی نماز پڑھوں۔ میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی ابتدا میں نماز ظہر پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تاڑے لی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے۔ میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی سامنے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان میں بلائے تو شاید اتنی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئے۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے۔ میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی یہ شرف دو۔ فرمانے لگے چلے آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سینگ کیا تھا نکی ساری سینگ تھی۔ اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے، کوئی میرے لیے کوئی پانی شانی لے لے، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا۔ میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھوڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے۔ اصل میں ساڈے ذوق کا پتہ لگا کس طرح دے بندے ساڈے سنیے چ مشہور ہیں۔ اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے۔ میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب گھبرا کہ حضرت خیر ہے؟ میں بس حضرت رونا آ گیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی یہ تھے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ حضور مدرس نہیں لگا، پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، جی مدرسے ہے نے تے مدرس کوئی نہیں، کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات نہ بن جو، کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا، یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے بعد 12,000 تے پڑھانا۔ ارے صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں گے حضرت آپ نے مارا کیا۔ اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار، کہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے، نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس میں۔ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو۔ میں ظاہر ہے سیالکوٹ ہے کہ بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سوچ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بنا، اس
वक्त कोई नहीं बोलता, चले जाते हैं, लेकिन हजरत पता क्या करते हैं, फिर जाके ना, नंबर तो सबके पास मेरा है, फिर अपनी फैक्ट्री में बैठ के ना अपने अपने बच्चों के स्कूल की ना वो तस्वीरें मुझे सेंड करते हैं कि हजरत साढ़े बच्चे का स्कूल देखो, 12वीं इमारत देखो, क्लासरूम देखो, नाल बाग वेखो, बाग से लगे झूटे वेखो, क्लासरूम च AC वेखो, क्लासरूम का फर्नीचर वेखो, थले जनाब जो मैट पे ने वो वेखो। और आगे से कहते हैं हजरत अगर आपके पास भी कोई ऐसा मदरसा है तो बताइएगा, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो क्या करो, इस दुनिया ने सारे पैसे नाथ खाना दे छड़े। अल्लाह तुसी टेंशन ना लवो, कैमरे च मैं आना, तुसी ते आना ही नहीं, जो नाथ पेगा मेरे पिछे पेगा, तुहाडे पिछे नहीं पैंदा कोई, तुसी ना डर डरो। की कमा उन्होंने कि सुनिया ने सारे पैसे मदरसियां लिए आई, कोई नहीं। ये जिनके नाम पे आज हम बैठे हैं, 70 के करीब किताबें लिखी हैं। आला हजरत की वो किताबें जो अरबी में थी उनका उर्दू में तर्जमा किया, और आला हजरत की वो किताबें जो उर्दू में थी ताकि अरब उलमा भी उससे मुस्तफीद हो सके, उनको उन्होंने अरबी में कन्वर्ट किया। ये जिनके नाम पे हम बैठे हैं, सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला, जो किताबें अरबी में थी उर्दू में, और जो उर्दू में थी उनको अरबी में। लेकिन ऐसी देखो इल्म ते उलमा ने की हमने इल्म और उलमा के साथ है क्या जी, बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी महफिल नात है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ 4 करोड़ हजरत साहब खर्चा आ रहा है जी एक महफिल का, इतनी इतनी बड़ी महफिल नात। कभी हजरत साहब मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी ने कोई फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में महफिल नात करवाई हो तो उसके लिए चंदा मांगा हो। ऐसा पूरा कुरान सुना के हाफिज नूं 30 35 40 हज़ार देना हुंदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ करना पैंदा। 4 करोड़ आप बिल्कुल टेंशन ना ले, कैमरों के सामने मैं हूं, जे किसी ने टकरना मैनू टकरेगा, तुसी ना टेंशन लो, तुसी चिल बैठो सारे। मर जाना हजरत, कल हुजूर को क्या जाके मुंह दिखाएंगे, इनसे डरते हैं हम। या हम अब दर्द भी ना अपना बोले, हम अपना रोना भी ना रोए। अल्लाह मेरा अच्छा एक मेरा मदरसा ही कोई नहीं होगा ना, मेरा है चल नहीं रहा तो मैं तां रोन डे, मेरा मदरसा ही कोई नहीं। और भी आप सुन ले, हो सकता मेरा है तो चलन ही नहीं डया था तो मैं तां रोन डया था, मेरा है ही कोई नहीं। मैं तो जो है मैं तो उनके लिए रो रहा हूँ हजरत, खुदा का वास्ता प्यार करो अपने इदारों के साथ। हम जिनके मानने वाले हैं वो इल्म वाले थे, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया वाले नहीं थे वो। फतावा रज़विया शरीफ मुंह बोलता सबूत है कि मेरे आला हजरत का मिजाज क्या था। फतावा रज़विया शरीफ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फिक्र रजा है क्या हजरत। लेकिन क्या है हजरत साहब, तवज्जो की थी, कोई तवज्जो नहीं। ऐसे ऐसे बड़े नाम हजरत साहब गुमनाम ही रह गए, जाना ही नहीं किसी ने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा बाजी इल्म वाले पास और उलमा, हजरत इल्म की तरफ नहीं आए, उलमा की तरफ नहीं आए। उसका नतीजा क्या निकला, 77 साल गुजर गए, हमें रोटी भी नहीं खानी आती। ये तो हजरत तब कुछ मिजाज बदल गया ना कि अब मैरिज हाल में खाना हर बंदे के सामने आता है। और आपको पता है जब तक खाना सामने नहीं आता था क्या हुआ करता था, बड़ी देर के बाद एक गाँव में जाना हुआ, एक निकाह पे मैं हालांकि जाने लगा, लेकिन उनका नहीं शादी खा के जाओ, खाना खाना है तो जाना पड़ा मुझे भी। तो वो पुराना स्टाइल था हजरत, खाना दरमियान में रखा था, आपने खुद ही उठ के जाना। तो खीर भी पड़ी थी, अल्लाह आपको पता है हजरत मीठा सबसे एंड पे खाती, लेकिन देख के दुख हुआ, लोगों ने सारे से पहले मीठा ही पाया कि बाद च नहीं लगना। मीठा इतना खाते हैं बस। अगर हम घर में खाना खाएं, किसी दावत पे जाएं, तो जो मीठा डालने के लिए वो आपको बर्तन दिया जाता है वो कितना का होता है, इतना मीठा, इतना बस खाने वाली चीज। लेकिन देख के दुख हुआ, हर बंदे ने हजरत साहब थाली भर ली, खाना भी एंड पे था, खाना भी इतना इतना था, लेकिन क्या है तरबियत ही नहीं। बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन सारी रात शेर व शायरी हुई। उसका नतीजा क्या है, 77 साल गुजर गए, हम अभी तक गिलास से संगली नहीं उतरवा सके। कौम को इतना ही ज़हन मिल जाता कि वो चलो चोरी दे
किते भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐ नहीं करनी क्योंकि यह गिलास साझा है, यह राह गुजरा ने पीना है, मुसाफिर ने पीना है, आंदे जांदे ने पीना है। इस गिलास को छेड़ना 77 साल गुजर गए हजरत, आज भी मस्जिद में भी जूती महफूज है कि चलो कम से कम इतना ही ज़हन बन जाता। चोरी बाहर भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रब दा घर है, इत्थे ते कदी भी करनी। वजह क्या? हमारे बड़े कुछ थे लेकिन हम आगे से बन कुछ गए। नाम उनका लिया लेकिन काम उन वाला किया। इसीलिए तो आला हजरत इकबाल रोए, इकबाल ने कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे पर्दा हो। वो कुछ तुम कुछ, उनका किरदार क्या तुम्हारा किरदार क्या। इसलिए हजरत दीन की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ। किड़े किड़े रोने मेरे आला हजरत 1 महीने में कुरान याद किया, बिठा के हजरत पूरे कुरान का तर्जमा लिखवा दिया। हुजूर गौसे पाक सारी रात एक कुरान तिलावत, और मैं 14 साल हर रात एक कुरान तिलावत करता। लेकिन हजरत साहब यहाँ क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? पूरी महफिल में सिर्फ एक बार कुरान पढ़ा जाता है। सफरी बंदा उन सड़कों पे नजर पड़ती है, फ्लैक्स में क्या लिखा है, बंदों के कलाम पढ़ने के लिए बंदे कितने आ रहे हैं 7, और अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए बंदा आ रहा है सिर्फ 1। जब ऐसा स्टेज वालों ने कुरान के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रखा तो फिर इनसे क्या गिला। भूल गए, इतना भूले कि लैट्रीन में लाखों की टांगे भूल गए। किसको भूले? कब्र को मरना भूल गए। बाबा साहब ने कहा था कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश मार चले, कोई पलिया नाज ते नखरे विच, कोई रेत गरम ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आ बंदा, कोई करके मकसद आ चले। यार फरीदा ये तो सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। लेकिन अदर जी अंदर वाले क्यों कौन मना, ये मनदा ही नहीं है, ये नहीं मनदा। ये कहता मैं कि जाना, मैं तो इत्थे ही रहना। फिर बाबा साहब ने लिखा और बिल्कुल कमाल लिखा, आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली, कोई मिट्टी फुली ने, कोई काटन का सूट पा के मिट्टी मिट्टी नहीं रही, कोई गुल अहमद का सूट पा के मिट्टी मिट्टी नहीं रही, कोई किसी महंगे जे ब्रांड की जुत्ती पा के मिट्टी मिट्टी नहीं रही। नहीं इधर जी मिट्टी है, और फिर मिट्टी भी नहीं खाली गंदी मिट्टी है। या इस वक्त कौन सा ऐसा बंदा बैठा है जिसकी आंतों में पखाना नहीं है? कौन सा यह बंदा बैठा है जिसके मिसाने में पेशाब नहीं है? कौन सा बंदा यहाँ ऐसा बैठा है जिसके पित्ते में सुफरा नहीं है, जिसकी तिल्ली में सौदा नहीं है, जिसके फेफड़ों में बलगम नहीं है, जिसकी रगों में खून गर्दिश नहीं कर रहा? हमसे ज्यादा भी कोई गंदा है? मैं अक्सर जी बैठ के सोचता हूँ माल का पता नहीं इत्थे केड़ा टक्कल ला छड़े कि अंदर दी बो बाहर नहीं गई, पता नहीं इत्थे केड़ा टक्कल ला कि अंदर दी बो बाहर नहीं गई। तो सुलेमान मिसबाई है नहीं कबूल है कि फिरंडे है, जब बाहर आनी शुरू होए तो सुलेमान मिसबाई अपनी बो ना अपनी मर गए, पता नहीं की। लेकिन ए असल इसलिए मेरे हकीम साहब फरमाया बाबा शीशे के भुलेखे च ना, शीशा झूठ बोल दे, जे अपनी असल वेखनी है तो कभी लैटरीन च वह के वेख, तेन पता लगे तू है कि तेन उन्हें इज्जत दे छड़ी। लेकिन होया कि वेख फरीदा मिट्टी फुली, उन्हें पैसा दिता सी फुल, उन्हें पुत्र दिते असी फुल गए, उन्हें सीट दिती असी फुल गए, उन्हें इज्जत दिती असी फुल गए, उन्हें ओहदा दिता असी फुल गए। लेकिन बाबा साहब कहते कि ने वेख फरीदा मिट्टी फुली, वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी भुली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ कूड़ फिर मिट्टी होई। फिर बाबा बुल्ले शाह ने भी लिखा, कलम उठाया आपने भी कमाल कर दिया। फरमाते ने माटी जोड़ा पुत्र कदी भुलेखे च ना। हमारे नबी अलैहिस्सलाम एक दुआ फरमाया कि अल्लाहुम्मा आरीना हक्की हकाइकल अशिया, अल्लाह मैनू हर शै दी हकीकत वखा, मैनू हर शै दी असल वखा। पुत्र असी नकल वेख पागल होण दे असल है जी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार,
माटी कदम करेंदी यार। और फिर शेर बड़े हैं जी, कमाल किया बाबा साहब ने एंड पे, बाबा बुल्ले शाह ने। आप फरमाते हैं चार सैयां रंग खेड़न लगियां। कुरान भी तो यही कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन वल्लाह, खेड़ जी। फरमाते हैं चार सैयां रल खेड़न लगियां, पंजवीं विच सरदार, खेड़ खूड़ मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी। और हज़रत जी फिर मैंने अपने सैयदी सियालकोट हकीम अब्दुल्लाई रहमतुल्लाह, हमने देखा हज़रत जैसे जैसे उस बाबे पे हकीकतें खुलती गई, उस बाबे ने भी चुप पड़ दी। हम 3 घंटे आपके साथ महफिलों में बैठे, कोई कलाम नहीं। 3 घंटे बाद फरमाया दुआ करो जी। हमने जनाजे पढ़े आपके साथ, लोग आ रहे हैं। और हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुमार उन लोगों में से था कि लोग चाहते थे कि आप कलाम करें और हम आपके कलाम को सुने। 10 मिनट जनाजे तो खलोना पे, आप चुप करके खड़ो, किसी और क्या चल तू बयान कर, मैं नहीं फरमाया। एक दिन तन्हाई में अर्ज की, सैयदी जनाजे ते बयान करना कोई शर्म कोई नाजायज़ थे नहीं? फरमाने लगे नहीं जायज़। अर्ज की थी हुजूर फिर क्यों बयान? देखो कितने गहरे लोग। जागे से फरमाने लगे मौलवी सुलेमान की करा जनाजे ते बयान, मतलब चलो कोई लोग सीखण सलाह होएगी। फरमान लगे चलिया जिन्होंने सामने पई मैयत को कख नहीं सीखिया, मैं उन्होंने की सिखाना है। असी पुत्तर चस्कियां च लग गए। फरमाया जिन्हें सामने पई मैयत को कख नहीं सीखिया, मैं उन्होंने की सिखाना। जेड़े इस जनाजगाह को दरस नहीं लैके गए, मैं उन्होंने की दरस देना। जिन्होंने इत्थे हज़ारां कबरां को कख नहीं सीखिया, मैं की सिखाना। पुत्तर मैं कोई नवी गल तुहानूं नहीं सुणाना, गल उही है जिहड़ी पुरानी सी। जाना भी इथों जाना, गल ही पुरानी। हजरत सैयदना माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ लाए हैं, हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह। वो कैसे लोग थे यार, महफिल सजी है, लोग हाजिर खिदमत है। जो अदाब महफिल है, पहले अगे वडेरे बाबे है, फिर पीछे जवान, फिर बच्चे। पहले आप वडेरे मुतवज्जो है। आपने फरमाया भाई मफहूम है आपकी बात। आपने फरमाया भाई बाबे भी गल तो दसो। सारे वडेरे अर्ज करते हैं जी माँ। आपने फरमाया किसान हाल चलाता है, पानी लगाता है, बीज बोता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, फिर वो फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है। भाई बाबे भी गल तो दसो, फिर किसान अपनी फसल ना की करता है? साहब ने अर्ज की थी हजूर ज़ाहिर पक गई, किसान वढ़ लैंदा है। इमाम फरमाने लगे भी बाबे हो तैयार रहियो, तुसी पक्की फसल उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना, ठीक है जी। फिर नौजवान बैठे हुए थे, फिर आप उनकी जानी मुत। आपने फरमाया भी जवानों एक गल तुसी भी दसो। मैं अर्ज की थी जी माँ। आपने फरमाया किसान हाल चलाता है, पानी लाता है, बीज पाता है, अपने खेत की खिदमत करता है। एवं निके निके बूटे निकले होते हैं, एक तूफानी बारिश आती, सैलाब आता, उस फसल नूं जड़ा ना तबाह बर्बाद करके रख। सब ने अर्ज की थी जी माँ। आपने फरमाया भी जवानों तुसी भी तैयार रहिए, किते ऐ ना होए किस दिन कोई तकदीर दा ऐसा तूफान आए जिहड़ा तुहानूं पक्कन तो पहले उजाड़ के रख दे। इत्थे पई यही अपनी नमाज़ पूरी करो, हलाल खाओ। जवान मुंडे बैठे दे पुत्तर, अपने वालिदैन दी बड़ी खिदमत करो। ला वैसे इस तरह करना नहीं मेरे ख्याल नाल चाहिदा, ना सूफियां ने इन्हूं पसंद कीता, लेकिन चलो हुण असीं पहुंच भी तो उत्थे गए हां कि मेरे ख्याल नाल कर देना चाहिए। खलारो हां पुत्तर हत्थ किहड़ा जिहड़ा रोज़ अपनी अम्मी ते अब्बू नूं कुट के वेखियो जी, वेख लईओ, एवं ना हाथ खलार छड़ियो जिहड़ा रोज़ अपनी अम्मी ते अब्बू नूं कुट के सौंदा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एडी वड्डी महफिल चल रही, सिर्फ 39 जिमें जेडे रोज मां ते प्यो नूं किहड़ी महफिल दसो जी, किहड़ी महफिल? जालमो एडी जालम है, एडा जे तू बचूंगड़ा है, एडा जे तू बचूंगड़ा है, ये तू पुत्तर जो प्यो बनेगा तेन फिर पता लगेगा तेन उन्हें पालिया क्यों। अज तेरे कलैना भी कटिया वैड़िया टाइम है नहीं कि तू राती मां तो प्यो कुट के बातें बड़ियां तेरे जी।
रज़वी साहब मेरे वालिद साहब बदल अल्लाह उस बाबे दी कब्र ते लखा रहम करे मैनूं बना गया जाती। मैं अपने वालिद के बुढ़ापे की औलाद 17 साल बाद पैदा हुआ। गुजर बरादरी है, डंगर शंगर रखे। सिर्फ एक दिन मेरे अब्बे ने मेरे अबू जी ने मज्झां नूं पट्ठियां पांदे वेखे। अगले दिन मेरे पुत अबू ने डंगर वेच छड़े कि मैं मुंडा पढ़ाना है, डंगर वेच छड़े। ठीक है जी, पढ़ाया, वडेरे वेले पढ़ाया, 60 साल तक नौकरी की, क्योंकि जो नौकरी ना करते फिर मैं पढ़ नहीं कर सकता। बस कोई वक्त आया मैं अपने अबू जी के साथ किसी दफ्तर में चला गया। वहाँ मेरे अबू जी ने अंगूठा लगाना था, सिम लेने गए यूफोन के दफ्तर। अबू जी अंगूठा लान ते अंगूठा ना, बड़ी काकी बैठी सी ना उत्थे, वो कहने लगी आप इस तरह करें कि बाजार से कोई लोशन ला के जरा इनके अंगूठे को लगाए, तो फिर आए तो अंगूठा लग जाए। मैंने अबू जी को दफ्तर बिठाया, नीचे गया जी लोशन लेके। मैंने जरा अपने अबू जी के अंगूठा उस दिन पहली बार देखा। मैंने जब लोशन लगाया तो क्या देखा, अबू जी के अंगूठे होते लिखे को, क्योंकि वारदा में मुलाजम थी, तारा खींचनी, प्लास फड़ना, सख्त काम करना। तो देखा तो अंगूठे पे लाइन ही नहीं थी, ना होने के बराबर थी। वो दिन अपने अबू जी ने पूछा, अबू जी लड़ियाँ लैना कितने गई? थोड़ा दुख भी था, थोड़ी खुशी भी थी। फरमाने लगे यार तेरियां लैना बनाते मेरियां मिट गई। ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद वाले एडी बड़ी महफिल सिर्फ 39 बंदे ने अटकाए जैसी रोज अपनी अम्मी अपनी को ये हालात है। कौन सी महफिल, केड़ी महफिल नहीं पता। अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने वालिदैन नौकर पुत्र भर्ती हो, किसी और नौकर नहीं हो, बादशाहियां करो, अफसर लग जाओगे जिथे जाओ। लेकिन शर्त पहले है कि पुत्र इन्होंने नौकर। और बायज़ीद 40 साल हज़रत जी बिस्ताम के जंगलों में चिल्ला कशी की, मकसद नहीं है। 40 साल बाद का चल बायज़ीद रब लबन निकले हों, चल अब्बा कोई चल माँ की जियारत करिए। चल जब आए तो रात का वक्त था, दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि माँ की नींद खराब। बाहर ही बैठ गए, अंदर से पानी आया जो इस बात की निशानी थी कि अम्मा जी तहज्जुद के लिए उठ गई हैं। आपने तहज्जुद पढ़ी, फिर हाथ खड़े कर। हज़रत बायज़ीद कहते हैं मैं सुन रहा था, मेरी मां अल्लाह के हुजूर क्या अर्ज़ करती है, रब्बा तेनू लभन निकले, तेनू कौन लभ सकता, तेनू कौन लभ सकता। या अल्लाह मेरे बायज़ीद तेरे आप फरमाते 40 साल की इबादत से वो नहीं मिला जो उस वक्त माँ की दुआ से मिल गया। पुत्र कुटिया करो, कुटिया करो, अपने वाले साहब मुंडे दबाया करो। और चलिया ये वही मुंडे ने ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਅਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਇਆ, ਅਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਜਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जे तेरी मां तेरे तू नाराज है, तेरा वालिद जिथे मर्दी टुर जा, तेनू फैज नहीं हो कि तू होना। इन्हां नू राजी करके निकल, जिथे जाएगा तेरे लिए फैज ही फैज। इनको राजी करो। अच्छा मैं एक और बात आपसे फिर पूछता हूँ, माँ के वालिद, चलो वालिद की तो बात होगी, माँ की। मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम हजरत बाजार जाना। मैं जाता भी नहीं, मिलने मिल जाते हैं, फिर बड़ा कुछ होता है, मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन जब कभी जाया करता था ना, तब भी कोशिश होती थी कि जल्दी निकल, लेकिन मैं जिसको साथ लेके जाता हूँ मेरे बच्चों तो क्या होना, मसलन मैंने कहना ये ठीक है चल ले बस निकली है, तुम लोग इकट्ठे होने शुरू नहीं, अदर एक बारी देख तो क्या करती है, बच्चों के साथ लगा के चेक करती, नहीं सोना जुत्ती लैंड टोर जो फिर है, और मैं कहना जुत्ती नहीं एक बार जरा चेक कर वो इधर टोर के वेख वेखो ना सज्जन नहीं है। मैं सीखता हूँ, सच बताना जी, कभी तुझी मां नूं लै ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, माँ के पैरे जुत्ती पवा के चेक की, पुत्र हम तो इनका बदला ही नहीं दे सकते, इनका बदला नहीं, और जो इन्होंने हमें दिया हमसे ये मांग भी नहीं रहे। सिर्फ इन्ना कराया करो, कम से कम को अद्धा घंटा माँ कल बह जाया करो,
कम से कम को आधा घंटा पौना घंटा वो अपने प्यो को लाया सुनिया करो दी भी गल वो बड़ा कुछ तुहानूं कहना चाहता क्योंकि टाइम ही नहीं सुन और याद रख पुत्र अगर आज तू नहीं ना सुन रहा तो बारी तेरी भी है। मौलाना रूम ने इसको बाकायदा हिकायत की और फरमाते हैं और मैंने देखा है जी पहले मैं समझता था शायद बुजुर्ग कर देते हैं नहीं मैंने देखा अपने मुआशरे में होता है इस तरह को बाबा सी बुढ़ा हो गया उन्हें खंगना करना रात एक दिन बुढ़ी कहने लगी की सारी रात तेरा अब्बा खंगता रहता सारी रात सारा दिन मैं काम कर कर थकी हुई है राती तेरा अब्बा नहीं सौन देता अल्लाह कुछ कर कहना फिर की कर उन्हें कहनू डंगर वाले कमरे छड़ इनू डंगर वाले कमरे छड़ पुत्र आके प्यो नूं कहंदा बाई सारी रात खंगते रहंदे हो मैं भी दिने मजदूरी कीती हुंदी नूं तुहाडी ने भी सारे दिन काम कीते हुंदे ना मैनू नींदर पैंदी ना उन्होंने नींदर पैंदी प्यो सी ना कहंदा अच्छा पुत्रा की चाहता उन्हें कहा भाई तुम डंगर वाले कमरे च टुर उन्हें कहा पुत्र जे मैं डंगर वाले कमरे टुर जाऊँ तू रात उन्हें कहा वो भाजी फिर तुम खंगोगे भी नहीं खंगोगे तो उत्थे खंगोगे आवाज ही नहीं आनी खंगन की सुकून की नींदर पेगी सब सिरे वो भी ठीक रहेगी मैं भी ठीक प्यो ने कहा ठीक है मतलब जिवें तेरी खुशी है पुत्र ने कंबल फड़िया बिन छड्डे चल पोतरा अगे आया उन्हें दादे दे तू कंबल खोल के ना थले लत्त रख के तूने बिचू कंबल पाड़िया अद्धा दादे नूं दे छड़िया अद्धा कोल प्यो कहन लगा पुत्रा क्यों दादे दा कंबल अद्धा अद्धा कर छड़िया घर ढेर कंबलों के पेज ने उथों ले लेना सी ये कंबल क्यों अद्धा कीता नहीं उन्हें कहा भाजी तां अद्धा करके कोल रखिया जो तुसीं खंगोगे तो तुहानूं भी अद्धा देख के डंगरां दे कमरे छड्ड के अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो जब तू मां दे नहीं ना घुटन डिया तो पुत्र कल घुटने तेरे भी किसी तू अज अपने अबू जी दे पैर नहीं ना घुटन डिया पुत्र घुटने तेरे कल किसी ने नहीं अज उन्होंने दे घुट लै कल को तेरे भी घुटे अज उन्होंने दी खिदमत कर लै कल को तेरी भी करेगा अज उन्होंने पुछ लै कल को तेनू भी पूछेगा और पुत्र जिवें दे ऐसी सैंपल जवान करन दे इन्हां ते नज़र रखना भी नहीं है ऐसा ये आप मना रहे हैं ना मदर डे ये हम जा रहे हैं आहिस्ता मदर डे किधर से आया या तो हर लम्हा मदर डे या तो हर लम्हा फादर डे या कुरान ने कहा है कि भाई एक दिन अम्मी दा ते एक दिन अबू दा बल्कि कुरान तो कहता है उफ़िम वला तनहरहुमा उफ़िम वला तनहरहुमा कुरान ने तो कहा ही नहीं कि एक दिन व बिल वालिदैन एहसाना बल्कि कुरान कहता है जब तक ये तुझ में मौजूद है तूने इनके साथ एहसान ही करना है या आप ले आए मदर डे ये मदर डे यूरोप की पैदावार है जो अपनी अम्मी और अबू को जाके ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं ये एक दिन उन्होंने रखा हुआ है भाई एक दिन जाके अपनी अम्मी से अपने अबू को मिलना है इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में हर लम्हा वालिदैन की खिदमत है इसलिए पुत्र की कदर अपने माशरे में देख रहा हूँ बड़ी भी कदर स्पेशल हमारे बाबों की बड़ी कदर बाबे कदी चाह ली दुकान कदी उत्थे बह के अपना अपना टाइम लगा दे मैं जब आज अपने बेटे को देखता हूँ ना छोटे को तो मैं हालांकि उसके लाड़ लड़ाऊंगा अल्लाह ने 4 दिन तो फिर मुझे अपनी बुरी याद आती कि हाजी 17 साल बाद रावण देता ही उन्हें किन्ने को लाड़ लड़ाए मैं क्या लाड़ लड़ाऊंगा मेरे 4 लेकिन रब ने 17 साल बाद देता ही उन्हें किन्ने को लाड़ लड़ाए मैं तो बदला दे ही नहीं सकिया बड़ी छेती मेरे बुरी को मैं तो बदला दे ही नहीं सका लेकिन आज भी कुछ कुछ याद पड़ता है जब अबू जी उंगली पकड़ के मुझे लेके जाया करते आज भी कुछ कुछ याद पड़ता है जब अबू जी अपने कंधों पे बिठा के मुझे लेके जाया करते इसलिए पुत्र मैं तो वो हूं जिसके पास ना माँ है ना बाप है इसलिए हाथ जोड़ के सबके आगे अर्ज करूंगा पुत्र जिस जिसके पास है इनकी कदर कर लो जिस जिसके पास है इनकी कदर कर लो अन करीब वो वक्त आना है जब ये नहीं होंगे आज अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी आज दुनिया में नाम है हजरत हर सब कुछ है मेरे पास नहीं है तो मां नहीं है तो वालिद नहीं है अल्लाह ने गाड़ी नहीं गाड़ियां दे दी हजरत बिल्कुल नई गाड़ी अल्लाह ने दी हजरत आपको बता नहीं सकता कितने आंसू ऐसे हैं जो मैं बाहर नहीं गिरने देता जो अंदर गिरते हैं जो जिस दिन मैंने ये नई गाड़ी खरीदी ना मुझे मेरे अल्लाह ने दी तो मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोया मर्द को रोना भी नहीं चाहिए लेकिन मर्द कहीं जाके बड़ा क्योंकि सब मेरी गाड़ी पे बैठे नहीं थी तो मेरी माँ नहीं थी बैठी नहीं था तो वालिद नहीं थे बैठने के दिल किया तड़फी लू अंदर से दिल मचला काश आज अम्मी जी होती मेरी नई गाड़ी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है मैं दरवाजा खोलता अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के अगली सीट पे बिठाता
सारे ही बैठे हजरत, वो भी बैठा, वो भी बैठा, वो भी बैठा, वो भी बैठा। नहीं बैठी तो मां, सारे बैठे हजरत, नहीं बैठे तो अबू। इसलिए जिसके पास ये है इनकी कदर करो। ओए ठीक है हजरत सुल्तान बाहू ने क्या आपने फरमाया, मुर्शिद दादीदार है बाहू, मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूं। वो एक रमज है, वो एक राज है। कि बिला शाह साहब बैठे हैं, पीरो मुर्शिद ने मुझे भी इजाजत दे दी, मुरीद भी हैं बड़े, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है हजरत जी। लेकिन वालिदैन कौन है? जिनके लिए अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, जो एक बार इन्हें मोहब्बत की नजर से देखेगा अल्लाह मकबूल आज का सवाब देगा। आज जिसके पास है आज कर लो राज राज के, आज जिसके पास है आज कर लो। ये तो वक्त तो गुजर है, काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टे अंडेरे वेख मोहम्मद बख्शा मौत सनी, आज नचदे न शशि मौत बागी, नाले वजन रबाब तंबू लड़ी, तन खाम ख्याल दे खैमे दी टुट जानी एक दिन तना, लोए लोए पर लकुड़ी जे तुद पढ़ पढ़ना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते कर जंदी परो पुत्र पढ़ना टाइम जाता जी। ये बस मैं मुख्तसर करूँगा, ये पुत्र जड़ियाँ चावां च असीं भेजदे ने चाह ही हकीकत नाल दा कोई था। इफ्तिखार साहब मेरे एक मुक्तदी हैं, फौत हो गए, उनका ये दान सोने का, शाह जी किबला जी ये आपको पता कभी रिवाज रहा है सोने का दान करने लोग लगाया कर। मैंने कई बार हजरत को कान में अर्ज करूँ हजूर में लोहा मर्द के लिए सोना मुतलका ना रहा किसी सूरत में भी जाए। उन्होंने भी हर जुम्मे मुझे कहा कि नहीं हजरत जी अगली बार आवांगा तो दान नहीं है। बस एक दिन रात को सोते में हार्ट अटैक आया और हजरत का इंतकाल। सुबह जो फजर के लिए नहीं उठे, बच्चों ने जाके कमरा खोला, हाजी साहब का इंतकाल हो चुका था। बहरहाल वो फिर भी हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा ये तो रात को फौत हो गई। मुझे उनके बेटे का फ़ोन आया, हाजी साहब फौत हो गई। मैंने कहा जी अल्लाह बख्शिश हो, ये जनाजे का क्या करें? ये आप बताएं क्या करें? आप कब तक सियाल को? मैं उस दिन फैसलाबाद था। मैं जी मैं इंशाल्लाह सुबह आ जाऊँगा। उन्होंने कहा जी जोर के बाद ना, मतलब 5 पुत्र थे नहीं है, पंजा का वखरा वखरा फोन की भला हजरत जी दंदा का डॉक्टर बुला के भाई का दंद कढ़ा दिए। पांचों को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि शरीयत में इस वक्त दांत के लिए क्या हुक्म है, ये साथ जा सकता है कि इसको निकलवाने ना चाहिए। पंजा एक ही होल पैन डे असी अब्बा एक दंद नाल लै चले, इन्होंने पुत्र दंद भी नहीं नाल लै इन्होंने दंद भी कि मियाँ साहब क्या कहते हैं, जांदी वारी क्या डरावना बने, जांदी वारी क्या डरावना बने, डरदे हाथ नहीं लगते। आपके ख्याल में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को 6 साल का डिप्लोमा करवा रही है, कोई पंजाब कॉलेज को कोर्स करवा रहा है उसको, क्यों नहीं फिर देते अपनी मैयतों को? मुर्दे नवाने वाले कितों निकल आए? जांदी वारी क्या डरावना, डरदे हाथ नहीं जांदी वारी क्या डरावना बने, डरदे हाथ नहीं लांदे, जना लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे, उत्थे अमलां दे होने नहीं नवेड़े, किसे नहीं तेरी रात पूछे, उत्थे आई पूछा जाने 10 बंदियां करके अज वक्त मेरे बच्चे कर लो 5 वक्त दी नमाज चले हो, सब अनोखी नमाज ही हो गई तड़ी। अच्छा 24 घंटे चलो बनते हैं, इन 24 घंटों में से फजर की नमाज को कितना टाइम देते हैं? मैं कहता हूँ चलो 15 दे दो, वो भी अगर जमात से पढ़ें तो, कल यहाँ पढ़ेंगे तो 2 मिनट, चलो मैंने जमात की काउंट की, जमात दुआ 15 हो गई। जोर को कितना देती है? मैं कहता हूँ चलो 20 दे दो, अलाउ ते नहीं इतने एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। 15 दे भी कितने हो गए? 45 हो गए, 35 हो गए। असर में कितना देंगे? 10 दे लो, किन्ने हो गए? 45 हो गए। मगरब में कितना देंगे? 15 दे लो, चलो मगरब कितना हो गया? पूरा 1 घंटा हो गया। शाम को कितना देंगे? 20 मिनट दे लो। मैं कहना चलो 5 दे लो। मैं तेन सवाल करना, वो बंदिया कैसा बंदा है? वो तेरे को 24 घंटे हैं जो अपने अल्लाह लिए 1 घंटा ते 5 मिनट भी नहीं है। तू बंदा ही है ना। और शाह जी दुख है होंगे कि
कुल दे खत्म ते जाओ मस्जिद नक्को नक करी, 10वें दे खत्म ते जाओ मस्जिद नक्को नक भरी, 40 ते जाओ मस्जिद नक्को नक भरी, जिस शादी ते निकाह पढ़ान टुर जो मैरिज हाल सारा पढ़े, मंगनी ते रश, दिहाड़े ते रश, वलीमे ते रश, सगना ते रश। ठीक है जी, इसी तरह ना जी मैं आपसे पूछने लगूंगा पुत्र याद रखिए अन करीब एक दिन आना जी, जिस दिन सारा कुछ सामने रख के तुम्हारा अल्लाह तुमसे पूछेगा बंदे दस केड़े कोल तू छड़े, केड़ा 10वां तू छड़े, केड़ा 40 तू छड़े, फर्ज तो नहीं दसवां, वाजिब तो नहीं है, 10 केड़ा निकाह तू छड़िया, 10 केड़ा वलीमा तू छड़िया, 10 केड़े तेल तू छड़िया, 10 केड़ी मंगनी तू छड़ी। बंदिया वे लिखिया दा हर साल नारान तू गया, मरी तू गया, कगान तू गया, मालम जब्बा तू गया, सवाद तू गया, बहरैन तू गया, सकरदू तू गया, खुंजराब बाईपास तू गया, बहुते पैसे सन ते तुर्की गया, और बहुते पैसे सन ते स्विट्जरलैंड गया। बंदिया सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, तेरे मल्ले साडा कार सी उत्थे क्यों नहीं? और पूछना नहीं पता, इन्हें पूछना एम ही ना मारे जाए, पूछना नहीं। इनकी मेरी उनकी बात नहीं, कुरान की बात है। सूरह मुद्दस्सिर अल्लाह कहते हैं जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, क्योंकि कुरान वो है जो हो गया वो भी बताएगा, जो हो चुका है वो भी बताएगा, जो होने वाला वो भी बताएगा। कुरान कह रहा है जी सूरह मुद्दस्सिर अल्लाह कहते हैं जो आले जन्नत है ना वो आले जहन्नम से पूछेंगे, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर। जन्नत वाले जहन्नम वाले ने पूछा, ओ भाई जहन्नम च किवें आ गए तुसी? तो पहला जवाब क्या देंगे जहन्नम में आने की वजह का? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे असीं नमाज नहीं सा पढ़दे, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बाकी सब बात छोड़ो, नमाज पढ़ो। और दुख पे दुख ये है, शादी ते दरजी किन्ने कार्ड आंदे? एक ही आंदे, या नाई लैके आएगा या को बंदा लैके, लेकिन की है जनाब शादी का कार्ड आंदियां तैयारियां शुरू, सूट जुत्ती वेस्टकोट सारा कुछ। लेकिन दुख की गल है इत्थे उथों उस मस्जिद चू सुनिया, उस मस्जिद चू सुनिया, उस मस्जिद चू सुनिया, उस मस्जिद कोई जाने ही नहीं है, सुनिया ही ना मेरा पुत्र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुनिया ही ना मालिक दा शाह, कोई जाने ही नहीं है। फजर वेले सुनिया, फिर जोर वेले फिर सुनिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कार्ड ब्याह दा, एक कार्ड, या कोई बंदा या नाई है, ऐसे रब दे घरों सुनिया आ रहे हैं। फिर असर वेले फिर सुनिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर सुनिया असर वेले, मगरिब वेले, शाह वेले, हय्या अलस सलाह। खत्म तो मैं आख छड़ना ना को बुलाए नहीं बुलाना, गुस्सा लगता लगे, मैं तो खत्म तो साफ लोगों को कह देना, मैं कहना यार कुछ तो अपने रब नाल वफा कर छो, कुछ तो वफा कर छो। जे खत्म तो आए हो ना एक सुनेहा ते, एक टेलीफोन ते, एक पैगाम ते आए हो ना, खत्म ते आए हो ना विआह ते कम अज कम रब नाल एनी क वफा कर छड़ो। या तो फिर ऐ करो अज तो बाद जिथे कितू सुनेहा आए ना टका के अगले नूं जवाब देना, उन्होंने कहना भाई गल सुन, मैनू मेरा अल्लाह बुलाए तो मैं कभी मस्जिद च नहीं गया, एडा तू वेला मैं तेरे विआह ते नहीं आना, क्योंकि तुसीं कदी भी पुत्र ही कह के मत होना। पुत्र फिर एक ही होया, बंदे नूं आ रब नूं ना, बंदे नूं हाँ रब नूं एक ही, या तो फिर बंदे ने भी ना करो, कोई खत्म नहीं अज तो बाद जाना, किसी शादी ते नहीं जाना, किसी सालगिरह ते नहीं जाना, किसी मंगनी ते नहीं जाना,
ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला